کہ اگر تم رات کو کھانا کھا کر بھر پیٹ سو گئے اور تمہارے پڑوس میں ہندو رہتا ہے، وہ بھوکا سویا، اس کے بچے بھوکے سوئے، تم نے ان ہندوؤں کی خبر نہیں لی اور تم پیٹ بھر کر کھا کر سو گئے، تمہارا دھرم کہتا ہے کہ اے مسلمانوں تم مسلمان نہیں ہو۔ آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پڑوسی بھوکا سو جائے اور مسلمان پیٹ بھر کے سو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو وہ مسلمان نہیں ہے، اور اگر مسلمان ہے تو اس کا پڑوسی بھوکا نہیں سو سکتا۔ یہ آپ کا دھرم اور آپ کا دین ہے۔ آج مسلمان تو ہر چیز کو چھوڑے ہوئے بیٹھا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم کو اس فکر کو زندہ کرنا ہے جس فکر کے اوپر جمعیت علماء کو قائم کیا گیا تھا۔ ہم کو محبت، پیار، ہر کسی کے ساتھ معاملہ انسانیت کی بنیاد پر کرنا ہے، ہر انسان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند وہ بندہ ہے جو اللہ کے بندوں پر ظلم کرتا ہے، اور اللہ کا سب سے زیادہ مقرب قریب ترین وہ بندہ ہے جو اللہ کے بندوں کے اوپر رحم کرتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہندو کے مسلمان کے اوپر رحم کرنے والا، اللہ کے بندوں پر رحم کرنے والا، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا، اللہ کے بندوں کی خبرگیری کرنے والا، وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بندہ ہے، سب سے زیادہ اللہ کا قریب بندہ ہے۔ اس لیے اگر اللہ کی قربت چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت کرو۔ ہندو اور مسلمان کوئی چیز نہیں، اسلام دھرم میں معاملات کرنے میں ہندو اور مسلمان کچھ نہیں ہے، اس کو اپنے بھیجے سے نکال کر باہر رکھو۔ اگر معاملات کرنے میں کوئی آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ ہندو اور مسلمان کا معاملہ، تو یاد رکھیے کہ وہ اسلام کا سبق آپ کو نہیں دے رہا ہے، وہ کوئی دوسرا سبق۔ اسلام کا سبق یہ ہے کہ جب معاملہ ہے کسی کے ساتھ، دھرم تو اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، انسان ہے، انسان کے ساتھ آپ کو صحیح معاملہ کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، میں نے 2-3 باتیں آپ سے عرض کی ہیں، ایک مرتبہ اس کو دہراتا ہوں۔ پہلی تو یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کا معمول بنائیں گے انشاءاللہ، عورت بھی بنائیں، مرد بھی بنائیں، تلاوت کرو۔ نہیں ضرورت ہے کہ بہت لمبا 10 منٹ کرو، 5 منٹ کرو، 1 صفحہ پڑھو، 2 صفحے پڑھو، 1 پاؤ پڑھو، جتنا ممکن ہو، لیکن روزانہ کا معاملہ۔ جیسے موبائل روز دیکھتے ہو نا صبح شام، ایسے ہی وقت بنا لو کہ اپنے موبائلوں میں قرآن سننا۔ دوسری چیز نماز کے ساتھ نماز کو پڑھو۔ تیسری چیز خوب صدقہ کرو، مرد بھی کرے عورت بھی کرے۔ چوتھی چیز ہے کہ ہر انسان کے ساتھ پیار کرو، محبت کرو، کسی کے ساتھ نفرت مت کرو، ہر کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ میں ان الفاظ کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور آخر میں ایک مرتبہ پھر اس جلسے کے منتظمین، انتظام کرنے والے، جلسے کو بنانے والے اور اس گاؤں کے تمام ذمہ داروں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے آج ہمیں اور آپ کو یہ موقع فراہم کیا کہ ہم دین کی بات کو سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے، اپنی شایع نشان بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کو قبول فرمائے۔ کا زینہ نہیں ملا۔ حضرات، یہ تھے بہت ہی اس بات کا عہد کر لیں پرندہ کی سرزمین پہ، یہاں کے غیور باشندے یہ عہد کریں اور معاہدہ کریں کہ آنے والے رمضان ابھی 1 سال سے زائد کا عرصہ ہے، تب تک انشاءاللہ ہم لوگ اللہ کے اس گھر کو بہت ہی شاندار اور بہت ہی بہتر انداز میں بنا کر اسے تیار کر دیں گے، اور حضرت مفتی شکیل صاحب قاسمی، شیخ الحدیث دارالعلوم الاسلامیہ امارت شریعہ پلواری شریف پٹنہ کو کبھی چل میں جب چھپ جاتے تھے، خود ٹھنڈک میں ماں سوتی گودی میں ہم سو جاتے تھے۔
गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जिनके सर पे माँ की ममता जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा। 5वें नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला कोई एक अल्लाह का शेर के लिए जो कदम उठाया जा रहा है, इसमें जमीयत उलमा हिंद का क्या रोल है? जमीयत उलमा हिंद का रोल जानने के लिए आपको जमीयत उलमा की जो खिदमात है आज़ादी से पहले की, उन खिदमात को देखना होगा। और आज़ादी के वक्त जमीयत उलमा ने मुल्क के दस्तूर को सेकुलर बनाने में जो किरदार अदा किया है, उस वक्त कोई दूसरी जमात या कोई दूसरे लोग नहीं थे, सिर्फ जमीयत उलमा थी जिसने इस बुनियाद पर कि हमने मुल्क की आज़ादी के लिए तकरीबन 150 साल खिदमत की है और हमसे कांग्रेस की जो आला क़यादत थी, गांधी जी थे, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, उन लोगों ने वादे किए थे कि जब मुल्क आज़ाद होगा तो मुल्क का दस्तूर सेकुलर दस्तूर होगा। जमीयत उलमा रोज़ अव्वल से इस बात के लिए मुल्क के अंदर कोशा थी कि मुल्क के अंदर जितनी भी कम्युनिटी और जितने भी दीन और धर्म के मानने वाले लोग हैं, उन तमाम के साथ बराबरी का मामला हो, बराबरी की बुनियाद पर उनके साथ मामला किया जाए। ये जमीयत उलमा की आवाज़ पहले से थी और जब जमीयत उलमा कायम हुई है उस वक्त भी इन्हीं बुनियादों पर जमीयत उलमा को कायम किया गया था। और आज़ादी से पहले जमीयत उलमा मुस्तकिल कांग्रेस से और जो आज़ादी के सिलसिले में जो लोग कोशिश कर रहे थे उनसे ये वादे लेती चली आ रही थी। जब मुल्क आज़ाद हुआ और बदकिस्मती से तकसीम हो गया तो एक आवाज़ उठी मुल्क से कि अब मुल्क तकसीम हो गया है, लिहाजा अब यहाँ का कानून सेकुलर कानून नहीं होना चाहिए बल्कि यहाँ का कानून अब हिंदूइज़्म कानून होना चाहिए। जमीयत उलमा उस वक्त जो कांग्रेस की आला क़यादत थी उसको लेकर बैठी और उनको उनके वादे याद दिलाए। और जमीयत उलमा ये समझती है कि वो शरीफ लोग थे और जमीयत उलमा की आवाज़ पर उन्होंने उस वक्त मुल्क के कानून को सेकुलर कानून बनाया है, सेकुलर दस्तूर बनाया है। उस दस्तूर को बनाने में अहम किरदार अगर अदा किया है तो जमीयत उलमा ने ही अदा किया है। सर क्या उलमा हिंद मुल्क की आज़ादी के वक्त ये ऐलान कर दिया गया था कि जमीयत उलमा एक गैर सियासी तंजीम है, एक मजहबी तंजीम है जिसका काम मुल्क के अंदर बसने वाले तमाम लोगों के दरमियान प्यार और मोहब्बत को कायम करना और सब लोगों को साथ लेकर चलना, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, उनकी जाति कुछ भी हो, सबको साथ लेकर चलने में विश्वास जमीयत उलमा रखती है और कोई सियासी जमात इस काम को नहीं कर सकती है। इसलिए जमीयत उलमा एक मजहबी जमात है और वो अपने काम को बखूबी अंजाम दे रही है। इसलिए जमीयत ये समझती है कि उसको सियासी जमात नहीं होना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल, अभी जो कुरान मजीद में 26 आयतें को बदलने का या हटाने का है, उस सिलसिले में आपका क्या कहना है? वो अल्लाह का कलाम है, दुनिया की कोई ताकत ना उसको बदल सकती है ना उसको हटा सकती है। और जो लोग इस सिलसिले में आवाज़ उठा रहे हैं वो बेवकूफ़ और पागल है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें सब मिलकर भी अल्लाह के कलाम के अंदर कोई रद्द बदल नहीं कर सकती है। और पहले भी लोगों ने कोशिश की थी और वो ख़त्म हो गए दुनिया से, ये लोग भी ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह का कलाम तो दुनिया के अंदर आया है, वो क़यामत तक बाकी रहने के लिए आया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज बतारीख 13 मार्च 2021 गांव लक्ष्मीपुर पुरंदाहा में जो प्रोग्राम तहफ़्फ़ुज़ आईन हिंद के तहत जामे मस्जिद की बुनियाद और तामीर और तोसी से मुताल्लिक जो प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, ये समाज के इस्लाह और समाज में सुधार के लिए ये प्रोग्राम किया गया है। और तहफ़्फ़ुज़ आईन हिंद ये एक ऐसा उन्वान है जो मुल्क के हालात, बिगड़ते हालात और उससे नफरत होते हुए हालात मुसलमानों के और बिगड़ते हुए हालात जो भी हैं, मुसलमान जिन हालात से गुज़र रहे हैं वो नागुफ्ता पे हैं, वो ऐसे हालात से गुज़र रहे हैं जिनके ऊपर जुल्म व सितम और जुल्म व इस्तिबदाद का पहाड़ तोड़ा जा रहा है और उनको नेस्त नाबूद और उनको मस्क करने का पूरी प्लानिंग, पूरी साजिश हो रही है। मैं मुल्क के
जो वफादार कहलाते हैं वो वफादार नहीं, गद्दार हैं। वो हिंदुस्तान के आइन को बिगाड़ने वाले हैं और उसको हस्फ व मस्ख करने वाले हैं। मैं इसलिए ये चाहता हूँ कि मुल्क में जो लोग आइन को समझने वाले हैं और उसकी आवाज़ को बुलंद करने वाले हैं, उनसे मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि संविधान की आवाज़ को उठाएं और हिंदुस्तान के आइन को बचाएं और उस पर आवाज़ बुलंद करें और लोगों को ये बतलाएं कि वो इस मैदान में आकर के जहां दोरंगी चाल और इसके अलावा जो मुसलमान और हिंदुओं में नफरत की आग फैलाई जा रही है और उनके साथ जो दोगलापन किया जा रहा है उसको मलिया मेट किया जाए, उसको नेस्तो नाबूद किया जाए। और यही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ इसकी नफरत की आग फैलाई जा रही है और आग सुलग रहे हैं और सुलगाए जा रहे हैं, मैं मुल्क के हर जिम्मेदार से ये गुजारिश करूंगा कि अपने अपने इलाके में प्रोग्राम के ज़रिए से और किसी भी अपने हिंदुस्तान के आइन को बयान करें और लोगों को बतलाएं ताकि लोग बेदार हों, लोग समझें और सरकार को और सेंट्रल सरकार को ऐसा अल्टीमेटम दें जिनकी हुकूमत दहल जाए और उनको ये खतरा लायक हो जाए कि ये मुल्क अब हमारे हाथ से जाने वाला है। ये मुसलमान सोने वाला नहीं, जागने वाला है। जब तक सोता है, जब तक देखता है, जब तक इंतज़ार करता है, ये अपने होश व हवास को खोता नहीं है बल्कि हालात से नबरद आज़मा होने के लिए उसका इल्म हासिल करता है। जब वक्त खड़ा हो जाता है फिर ये मुसलमान अपने आप को कुछ नहीं समझता है। मैदान में आकर के वो सहाबा की कारकर्दगी को अपना करके इस मुल्क के आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो कर सकता है। आज से पौने 200 साल कबल जब अंग्रेज़ों का तसल्लुत व इक़्तिदार हमारे हिंदुस्तान में कायम था और अकाबिल ने उनको भगाने के लिए और उनको यहाँ से रगड़ने के लिए जो कोशिशें की और मेहनत की वो सिर्फ हमारे अकाबिर की थी। और हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने काबुल के अंदर मेहनत की, हज़रत उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्होंने काबुल के अंदर मेहनत की, इसी तरीके से मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान के आइन को और मुसलमानों के वक़ार को बाकी रखने के लिए, जमहूरियत को कायम रखने के लिए उन्होंने कलकत्ता से एक तहरीक आज़ादी चलाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो तहरीक बाकी रही और हमारे मुल्क मिल्लत के सरबराह हज़रत मौलाना शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जब जिहाद का फतवा लागू किया था, सारे अंग्रेज़ों ने घुटने टेक दिए थे और कहा था आप अगर फरमा दें तो जो चाहेंगे वो हो जाएगा, लेकिन आप हमारे ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा वापस ले लीजिए। लेकिन हज़रत मौलाना शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेज़ की आंखों में आंखें डाल करके हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके फर्जंद अर्जुमंद जितने 4 लड़के थे उनके हज़रत मौलाना शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह इसाक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना शाह रफ़ीउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये सारे अकाबिर सब ने मिल करके अंग्रेज़ों का मुकाबला किया और जिहाद के हुक्म को नाफिज किया और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से खदेड़ के अलग कर दिया। और उस वक्त जो जमहूरी मुल्क बना, आज तक वो जमहूरी मुल्क बाकी है, लेकिन कुछ ऐसे अफराद हैं हुकूमत में जो आज मुल्क के हालात को नागुफ्ता भी उन्होंने बना दिया है और जो कहने के काबिल नहीं है। इसलिए मैं तमाम मुसलमानों से और सभी सेकुलर पार्टियों से और सेकुलरिज्म लोगों से, मिजाज के लोगों से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना इस मैदान में अपना एक अहम रोल अदा करें। और हमने जिस तरीके से आज इस प्रोग्राम का उन्वान कायम करके तहफ़्फ़ुज़ आइन हिंद के लिए हमने जो कुछ कोशिश और मेहनत किया है, अल्लाह से दुआ है अल्लाह इस प्रोग्राम को कामयाब करे। इसके तवस्सुत से जितने भी उलमाए किराम, हज़रत मौलाना सैयद हसन अज़द मदनी नाज़िम जमीयत उलमाए उत्तर प्रदेश जो हमारे इस इलाके हमारे इस इजलास के सदर हैं, जो हिंदुस्तान के मायनाज और एक आला शख्सियत का मकाम रखते हैं, आज हमारे दयार में तशरीफ़ लाए हुए हैं। इसी तरीके से हज़रत मौलाना अकरम साहब झारखंड से, मुफ्ती बिलाल साहब बांका से, इसी तरीके से मौलाना शाहिद आदिल साहब प्रिंसिपल मदरसा इस्लामिया अररिया से, और हज़रत मुफ्ती शकील साहब नायब शेखुल हदीस दारुल उलूम अल इस्लामिया
इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना से तशरीफ़ लाए हुए हैं शोराए किराम, हज़रत कारी शमशाद राही साहब बंगाल और फिरदौस अंजुम साहब बंगाल और अब्दुल बारी ज़ख्मी साहब और कारी अब्दुल नासिर साहब कोशकीपुर, ये सारे हमारे मखसूस उलमाए किराम जो यहाँ पर हमारे स्टेज के कामयाबी के लिए, प्रोग्राम के लिए तशरीफ़ लाए हुए हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो भी हजरात जिन लोगों ने ताउन किया है, गाँव से, बच्चे से, जवान से, बूढ़ों से, सब लोगों ने जम करके बड़ी तगोदो की है, बड़ी मेहनत की है, अपनी जाफिशानी का मुकम्मल एक दस्तूर चलाया है और बड़ी मेहनत और कुर्बानी दी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह असर की नमाज के बाद हज़रत मौलाना सैयद हसन असद मदनी के दस्ते मुबारक से काफ़ी एक बड़े मजमे के सामने मस्जिद की पश्चिम और उत्तर साइड में बुनियाद रखी गई और वो बुनियाद, उस बुनियाद में माशा अल्लाह पूरे गांव के लोग बिल्कुल मड़ताते हुए सैलाब की तरह लोग आए हुए थे और सारे लोगों ने इस प्रोग्राम में वहाँ पर बुनियाद में शिरकत फरमा कर ये साबित कर दिया कि हम लोग इंशाअल्लाह अपनी मस्जिद, अपनी इबादतगाह बनाएंगे। और हम तमाम ही लोगों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने 1 रुपया दिया, 100 रुपये दिया, जो कुछ भी दिया, जलसे में ताउन किया, जान से, माल से, बांस से, चावल से, जिस तरीके से हम सभी लोगों के शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला सब कुछ जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। आप अपनी तारीफ बयान कीजिए। मेरा नाम मुफ्ती अब्दुस्सलाम अल-मज़ाहिरी, खादिम व नाज़िम जामिया हुसैनिया इमदादिया जहांगीर नगर अररिया और गांव हमारा पुरंदहा लक्ष्मीपुर है, वार्ड नंबर 3 है। आप सभी हजरात से दरख्वास्त है कि मेरे लिए दुआ फरमाएं और मैं चाहता हूं कि अल्लाह ताला हमसे दीन का काम ले ले और जो है अल्लाह ताला हमें मस्जिद की मुकम्मल तामीर में जान व माल की पूरी कुर्बानी देने की तौफीक अता फरमाए। साथ साथ तमाम लोगों को इसकी मेहनत और कुर्बानी देने की भी